خداوند بھلا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب، آج کلیسیاؤں میں عید پینتیکوس منائی جا رہی ہے، اور اعمال کی کتاب میں جو خدا کے پاک روح کا نزول ہم پڑھتے ہیں اس کی یادگیری کی جا رہی ہے، اور ابتدائی کلیسیا سے لے کر اب تک یہ جو بات ہے، یہ جو واقعہ ہے، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سے پہلے کہ خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جاتے، انہوں نے اپنے شاگردوں سے ایک وعدہ کیا۔ اس وعدے کو میں پڑھنا چاہتا ہوں، 2 حوالے ہم پڑھیں گے۔ پہلا چیپٹر ہی ہے، اس کی 4 اور 5 آیت، اور پھر اس کے بعد ہم اس کی 8 آیت خداوند کے کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ پہلے ہم 4 اور 5 آیت پڑھتے ہیں، اور یہاں پر خدا کے زندہ کلام میں یوں لکھا ہے، اعمال کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت سے: اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ 8 آیت: لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ آمین۔ یہ وعدہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کیا کہ تم ٹھہرے رہنا جب تک کہ تمہیں آسمان سے قوت کا لباس نہ مل جائے۔ غور طلب بات یہ ہے، خدا یسوع مسیح نے کہا یوحنا نے تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیا۔ ہم جب لوگوں کو بپتسمہ دیتے ہیں، حوض کے اندر لے کر جاتے ہیں، تو ہم صرف پانی کا بپتسمہ دے سکتے ہیں، اس سے آگے ہماری اتھارٹی نہیں ہے۔ آگ سے بپتسمہ، پاک روح سے بپتسمہ خدا دیتا ہے، یسوع دیتا ہے۔ آمین۔ تو ہم جب لوگوں کو پانی میں اتارتے ہیں، کسی شخص نے کہا کہ خدا کے خادم پانی میں بپتسمہ دیتے ہیں، پانی کے دریا میں بپتسمہ دیتے ہیں، لیکن یسوع آگ کے دریا میں بپتسمہ دیتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب آپ ہمارے ساتھ ہوں گے تو آپ پانی کا بپتسمہ لیں گے، یہ ضروری ہے، یہ کلام کے مطابق ہے۔ لیکن جب آپ یسوع کے ساتھ ہوں گے تو وہ آپ کو آگ کے دریا میں بپتسمہ دے گا، اور آپ روح کی آگ سے بھر جائیں گے، آپ پاک روح سے بھر جائیں گے، آپ خدا کے زور سے بھر جائیں گے، آپ قوت سے بھر جائیں گے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ وعدہ کیا۔ جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا جب وعدے کرتا ہے تو ان وعدوں کو پورا کرنے کے لیے خدا کس کسوٹی کو استعمال کرتا ہے۔ ہمیں خدا کے وعدوں کو اپنی لائف میں کس طور سے ایکٹیو کرنا ہے۔ خدا نے وعدہ کیا، خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ تمہیں روح القدس ملے گا۔ اگر ہم یوحنا کی انجیل پڑھیں یا دوسری اناجیل پڑھیں تو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے بارہا یہ بات کہی کہ اب میں جاؤں گا اور ایک مددگار بھیجوں گا جو تمہاری مدد کرے گا، اور وہ مجھ سے ہی خبریں لے کر تمہیں پہنچائے گا۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ خدا کا پاک روح ایک ایسا آرٹسٹ ہے جسے صرف یسوع کی تصویر بنانی آتی ہے۔ سمجھے میری بات؟ پاک روح صرف یسوع کی تصویر بناتا ہے، اس لیے جب وہ آپ کی زندگی میں آئے گا تو وہ آپ کی صورت بھی یسوع کی طرح بنا دے گا، وہ آپ کو بھی یسوع کی صورت پر ڈھالتا جائے گا۔ تو رسولوں سے جب یہ وعدہ کر دیا گیا تو میرا خیال ہے کہ رسول پہاڑوں پر چلے گئے ہوں گے سیر کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا بریانی بناؤ مزیدار، کوفتے بنا لو، کٹلیٹ بنا لو، ہیں اچھی سی کھیر بنا لو، چلو سارے آؤٹنگ پہ چلتے ہیں۔ کیا انہوں نے ایسے کیا؟ وہ آؤٹنگ پہ چلے گئے، وہ چڑیا گھر چلے گئے، وہ کسی ایسی جگہ چلے گئے جہاں پر وہ اپنے آپ کو خوش کر سکتے کہ اب تو خدا نے وعدہ کر ہی دیا۔ بہت سے لوگوں سے خدا نے یہاں پر بات کی، ان سے کلام کیا گیا کہ میں آپ کی زندگی میں یہ کروں گا، فلاں شخص میں تیری زندگی میں یہ کر دوں گا، فلاں بیٹی میں تیرے لیے یہ کر دوں گا، لیکن ان کی لائف میں وہ ہوا نہیں۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ انہوں نے خدا کے کلام کو ایک تو یاد نہیں رکھا، خدا کے وعدوں کو انہوں نے پکڑا نہیں۔ ان رسولوں نے کیا کیا؟ جب انہیں پتا چل گیا کہ خدا ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ اپنے پاک روح کو ہم پر نازل کرے گا اور یہ ایک ایسا مددگار ہوگا جو ہماری زندگیوں کو تبدیل کر دے گا، یہ قوت کا لباس ہے جس کی قوت کی وجہ سے ہم تمام دنیا کے اندر انجیل کی بشارت دے سکیں گے۔ لکھا ہے وہ بالا خانے پر چلے گئے۔ آگے چلیں اسی چیپٹر میں، اس کی 12 آیت آپ کے سامنے پڑھوں گا، 12 آیت سے: اور جب اس میں داخل ہوئے تو اس بالا خانہ پر چڑھے جس میں وہ یعنی پترس اور یوحنا اور یعقوب اور اندریاس اور فلپس اور توما اور برتلمائی اور متی اور خلفئی کا بیٹا یعقوب اور شمعون زیلتوس اور یعقوب کا بیٹا یہودا رہتے تھے۔ یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ایک دل ہو کر دعا میں مشغول رہے۔ آمین۔
अगर आप चाहते हैं कि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ हर एक वादा आपकी लाइफ में पूरा हो तो दुआ करनी शुरू कर दो। अगर आपने कभी शीरखार बच्चों को देखा हो जो दूध पीते हैं, तो बच्चे को सिर्फ एक ही काम करना आता है, रोना। वो बोल तो सकता नहीं, वो उठ के अपना फीडर तो बना नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, वो इतना कमजोर होता है, छोटा सा होता है, वो बस चिल्लाता रहता है, वो रोता रहता है इस बात के लिए कि मुझे भूख लगी, मुझे दूध दिया जाए। उसके पास एक ही हल है, चिल्लाना और रोना। तो खुदा के वादों को आप अपनी जिंदगी में सिर्फ दुआ के जरिए से पूरा कर सकते हैं। सिर्फ दुआ करें, दुआ ही करते जाएं। खुदावंद तूने कहा है। कोई बाप अपने बेटे से वादा कर ले तो बच्चे जान नहीं छोड़ते उसको, कहते पापा जी आपने कहा था, पापा जी आपने कहा था, पापा जी आपने कहा था, चॉकलेट लेके दूंगा, आपने कहा था, आपने कहा था। वो जिधर जाता कहता आहो यार मैं क्या, चल आते लेके जा। ये तरीका है। तो रसूल जो थे खुदावंद यीशु मसीह की बात सुन के सिर्फ हैप्पी नहीं हो गए, वो दुआ करने के लिए बैठ गए। वो मुतलाशी थे कि खुदा ये कुव्वत हमें दे। प्रेज द लॉर्ड। क्या मैं और आप मुतलाशी हैं कि बाइबल मुकद्दस में जितने भी वादे हमारी जिंदगी के अंदर पूरे हों? चाहते हैं हो जाए। इतने बड़े बड़े वादे हैं कि आपकी सोच भी वहां तक नहीं जा सकती। मेरे और आपके गुमान से, ख्याल से भी बहुत ऊपर की बातें हैं जिनको हमारा ज़हन कबूल नहीं करेगा, लेकिन खुदा वो अपने लोगों को देना चाहता है। जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना इंसान के ज़हन में, खुदा ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए रख छोड़ी। खुदा ने तैयार कर रखी हैं, खुदा ने बना कर रखी हुई हैं कि कौन मेरा बेटा है, कौन मेरी बेटी है जो मेरे हुजूर में झुकेगी, जो मेरे हुजूर मुतलाशी होगी, और मैं उसको दे दूंगा। सीधी सी बात है। तो रसूल जो थे वो बैठ गए। पेंतिकोस्त का जो वाकया है, ये खुदावंद यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 50 दिन के बाद वाकया हुआ। 50 दिन तक ये लोग नॉन स्टॉप प्रेयर करते रहे। कितने दिन जी? 50 दिन, मतलब 1 महीना 20 दिन। 1 महीने में 30 दिन होते हैं, कई दफा 31 भी होते हैं। तो 50 दिन ये लोग दुआ करते रहे। किस बात के लिए? खुदावंद तूने कहा है कि तू अपना पाकरू नाजिल करेगा। खुदावंद अपने पाकरू को नाजिल कर, खुदावंद अपने पाकरू को नाजिल कर। और वो दुआ करते रहे, और वो दुआ करते रहे, और वो बीच में गीत गाते होंगे, प्रस्तिश करते होंगे, शुक्रगुजारी करते होंगे, खुदा का कलाम सुनते होंगे, खुदा के वादों पर यकीन करते होंगे, पुराने अहदनामे में से जाकर खुदा के वादों को याद करते होंगे। लेकिन उनके ज़हन में खुदा यीशु मसीह का ये ताज़ा वादा छा चुका था, उनके दिलों पर नक्श हो चुका था, उनके ज़हनों पर नक्श हो चुका था कि अब खुदावंद यीशु हमारे साथ नहीं है, लेकिन वो एक मददगार भेजेगा जो उसी की मानिंद होगा और वो हमारे अंदर रहेगा, जिसको सिर्फ यीशु मसीह ने कहा दुनिया नहीं देख सकेगी, तुम देखोगे। जिसके पास पाकरू होता है उसको पता होता है कि वो मेरे अंदर है। हालेलुया। और फिर क्या हुआ? दूसरे बाब की पहली आयत लिखा है, जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। पहले भी बताया कि जमा थे, और जब वो हुआ ये नहीं कि 120 जमा थे तो फिर 60-70 भी चोर निकल गए। उन्होंने कहा मुश्किल ही लगता काम, चलो यार चलिए, है ना। बैठे हुए थे, वो वहीं पर थे, दुआ कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, दुआ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी आइंदा आने वाले चंद लम्हात में कुछ होने वाला है। वो तवक्को कर रहे थे। अभी पादी साहब ने जो हवाला रोमियो के खत में से पढ़ा, लिखा है बर्दाश्त पैदा होती है, सबर पैदा होता है, सबर के बाद वो बताता है कि उम्मीद पैदा होती है। तो जब उम्मीद पैदा होती है तो फिर शर्मिंदगी नहीं होती। तो इन लोगों के अंदर ये उम्मीद थी कि कुछ होने वाला है। क्या आप कभी ऐसे एक्साइटेड हुए हैं कि खुदा आज मेरी जिंदगी में कुछ करने वाला है? हालेलुया। आज खुदा मुझे शिफा दे देगा, आज मैं अपने बिस्तर से उठ खड़ा होऊंगा, आज मेरा कर्ज जाता रहेगा, आज खुदा मुझे एक बेहतरीन जॉब दे देगा, आज खुदा मेरी जिंदगी में ये मौजा करेगा, आज खुदा मुझे इस तरह से ब्लेस करेगा। हम एक्साइटेड ही नहीं है, इसलिए होता भी कुछ है। एक्साइटेड है, कुछ होने वाला है। कहने लगा भाई पतरस उठना ना, पाकरू आने वाला है। हालेलुया। और वो मुंतजर थे। और फिर लिखा जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया सो वो एक जगह जमा थे कि यकायक एकदम से आसमान से ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सन्नाटा होता है, और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। कितने लोग बैठे हैं वहां पर? 120। हर एक पर, चुनिंदा लोगों पे नहीं कि रसूलों पर ही खाली ठहरनी था, बाकी जी भेज दे रहे। 120 पर, सब पर। रसूल भी शामिल है, कलीसिया भी शामिल है, पादरी भी शामिल है, कलीसिया के तमाम लोग शामिल हैं। अगर वो मुतलाशी हैं तो सबको पाकरू मिलेगा। हालेलुया। ये वादा सबके लिए, ये मेरे लिए नहीं है, ये बड़े बड़े खादमों के लिए नहीं है, ये पादी साहब के लिए नहीं है, चंद लोगों के लिए नहीं है, ये तमाम कलीसिया के लिए है, ये तमाम ईमानदारों के लिए है जो खुदा यीशु मसीह के खून से धुल चुके हैं, जो खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, और जो अपनी जिंदगी खुदा यीशु मसीह को दे चुके हैं। खुदा का वादा है कि वो अपना पाकरू हर फर्द बशर पर नाजिल करेगा और उन्हें अपने रूह से भर देगा। और फिर लिखा है उन सब पर वो जुबानें आ ठहरी
और वो सब रूह कुद्स से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जिस तरह रूह ने उन्हें बोलने की ताकत बख्शी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर डरे हुए रसूल बैठे हैं, यहां पर डरी हुई कलीसिया बैठी हुई। खुदावंद यीशु मसीह तो आसमान पर जा चुके हैं, रूमी सिपाही और यहूदी कौम के बड़े बड़े शुरफा उनके पीछे पड़े हुए हैं कि इस ग्रुप को खत्म करो, उनको जान से मारना चाहते थे। लेकिन उनके इनसाइड खुदा एक ऐसी कुव्वत भर रहा है जो उन्हें इतना दिलेर बना देगी कि वो सबके सामने बेखौफ खतर खड़े हो जाएंगे। हालेलुया। और फिर वही पतरस जो खुदावंद यीशु मसीह का गतसमनी बाग में भी भाग जाता है खुदावंद यीशु मसीह को छोड़ के, और फिर सरदार काहिन के सामने और दूसरे लोगों के सामने भी खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करता है, वो शख्स बगैर किसी खौफ के बाहर निकल आता है। और लिखा है वहां पर दुनिया इकट्ठी हो गई थी क्योंकि उन्होंने देखा कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है। शायद लोगों ने आग भी देखी तो ये आग किस तरह की है कि ऊपर से आसमान से आ रही है और घर को जला भी नहीं रही, आंधी का शोर भी इतना ज्यादा है लेकिन दरख्त भी नहीं टूट रहे। जो कुछ काम हो रहा है कमरे के अंदर ही हो रहा है क्योंकि मुतलाशी कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, खुदा के वादों पर यकीन करने वाले कमरे के अंदर बैठे हुए हैं, खुदावंद की बातों पर ईमान रखने वाले लोग कमरे के अंदर बैठे हैं। इसलिए सारा प्रोसेस जो है कमरे के अंदर हो रहा है, बाहर कुछ भी नहीं, लोग खड़े हुए। लेकिन पतरस बाहर निकले, वो सारे लोग बाहर आ गए, वो गैर जुबानें बोल रहे थे जिस तरह लिखा है रूह ने उन्हें बोलने की तौफीक बख्शी। तो जब रूह ने उन्हें बोलने की तौफीक बख्शी तो वो सब बोल रहे थे। वहां पर बेशुमार जुबानें बोलने वाले, मेसोपोटामिया के आगे चल के लिखा हो पता नहीं कौन कौन सी कौमों के, यहूदिया के और पिम्फिलिया के, मिस्र के, लबुआ के इलाके के, बहुत से इलाकों से लोग वहां पर काम करने की गर्ज से आते थे। लेकिन जब वो बाहर आए तो कोई मिस्री जुबान बोल रहा था, हालांकि वो था इब्रानी यहूदी था लेकिन वो मिस्री जुबान बोल रहा था, लबुआ के इलाके की जुबान बोल रहा था। उसने कहा यार ये बंदा तो ये जुबान जानता नहीं था, ये कैसे बोल रहा है? क्योंकि रूह ने उन्हें तौफीक बख्शी थी। हर किसी को भेद की बातें उनसे सुनने को मिल रही थी, समझ आ रही थी कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो लोग कहने लगे, कुछ बीच में से शरारती थे, बेईमान लोग कहने लगे तो शराब पी के आए हैं, इन्होंने नशा किया है, हमने पता है सारी रात इन्होंने बैठ के शराब नोशी की। तो पतरस ने कहा ऐसी बात नहीं है, खुदा ने अपने कलाम को पूरा किया है जैसे उसने यूएल नबी की मार्फत कहा था कि मैं अपना रूह हर फर्द बशर पर नाजिल करूंगा। और ये वो कलाम पूरा हुआ है और खुदा ने अपने रूह को हम पर नाजिल किया है। हालेलुया। और फिर एक जलाली पैगाम पतरस वहां पर देता है और 3000 लोग वहां पर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। मेरे अजीजों, अगर आज सारी इबादत के अंदर हमने इस चीज को फोकस किया है कि आप खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में मांगें, आप अमाल की किताब पढ़ें, मैं आपको इसके लिए फोर्स करूंगा, फोर्स का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मजबूर करूंगा कि आप पढ़ें। घर नहीं आऊंगा आपके, यहीं से आपको फोर्स कर रहा हूं कि आपकी मेहरबानी पढ़ें और आप देखेंगे कि पाक रूह ने कैसे अजीबोगरीब काम इन आम लोगों के वसीला से किए। जब खुदा का पाक रूह हमारी जिंदगी के अंदर आ जाता है तो फिर आम होते हुए भी हम आम नहीं रहते, जमीन पर चल फिर रहते हैं, लेकिन खुदा हमारे वसीले से अजीबोगरीब काम करता है। हालेलुया। ये पतरस चलता है और गलियों मोहल्लों में से गुजरता है और लोग अपनी चारपाइयां इसके आगे बिछा देते हैं। ओ माय गॉड, कि ये आके मालिश करेगा, इनकी मालिश कराने के लिए लटाते थे। पतरस का साया पड़ जाएगा तो हमारे मरीज शिफा पा जाएंगे। आमीन। ये कैसी जलाली बात है कि एक आम शख्स गुजर रहा है और उसका साया पड़ता है और बीमार लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, बुजुर्ग गिरफ्तार लोग बुजुर्गों से आजाद हो जाते हैं, लंगड़े लोग चलने फिरने लगते हैं, जिन लोगों की टांगें टूट चुकी हैं, हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, सीधे हो जाते हैं, मुर्दे उठ के बैठ जाते हैं, क्योंकि पाक रूह अब उस शख्स के अंदर है। हालेलुया। ईद पेंटिकोस्ट जो है ये दर हकीकत आज भी जारी है, ये खत्म नहीं हुई। हर रोज ईद पेंटिकोस्ट होती है। कलीसियाएं तो कभी कभी मनाती हैं, साल में एक दफा मनाती हैं, लेकिन मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि ईद पेंटिकोस्ट हर दिन ही होती है, क्योंकि खुदा खास दिनों में अपने पाक रूह को नाजिल नहीं करता, हर रोज नाजिल करता है। जो लोग खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में लेना चाहते हैं उनके लिए खुदा ने दरवाजे खोल रखे हैं। हर वक्त हर लम्हा आप खुदा से उसका पाक रूह मांग सकते हैं। और जब ये पाक रूह उनकी जिंदगी में आ गया तो इनके अंदर इतनी दिलेरी आ गई कि ये अंजील की बिशारत देने लगे। इन्हें ये तरीका समझ आ गया कि हमने अपनी गवाही देनी कैसे है। पहले ये गवाही शायद देते हो, लड़ाई पड़ जाती है, इनके पास टेक्निक नहीं थी। कहते हैं कि सोवियत यूनियन में वहां पर चूंकि अंजील बैन है तो कुछ घरों के अंदर इबादतें होती थी, तो पुलिस को पता चल गया कि यहाँ पर लोग आकर इबादत करते हैं और मसीही इबादत करते हैं। तो उन्होंने एक नौजवान लड़के को, इतने बच्चे को पकड़ लिया जो बाहर से कोई सामान लेकर घर में जा रहा था। उसने कहा बात सुनो, ये घर के अंदर क्या हो रहा है? अब देखें हिकमत की बात है। परेशान हो गया। उसने कहा अगर मैंने कहा कि इबादत हो रही है तो सबको अरेस्ट कर लिया जाएगा,
और जेल के अंदर फेंक दिया जाएगा। और इतनी लंबी जेल देते थे, कई दफा अंदर ही मार देते थे। उसने कहा जी मेरा भाई मर गया था, हम उसकी मौत की यादगिरी कर रहे हैं। समझ आई? सच बोला है उसने, झूठ भी नहीं बोला। उसने कहा जी मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई था, वो मर गया था, हम सब फैमिली इकट्ठे हुए हैं और उसकी मौत की यादगिरी कर रहे हैं, क्योंकि शायरबानी हो रही थी अंदर। और जो पुलिस के सारे लोग थे उन्होंने कहा चलो यार ना कोई बंदा मर गया, वो रस्मात कर रहे हैं, चले। दनाई देता पाकरू। उससे पहले हम लोगों को गवाही देते हैं तेनू कह रहे चर्च आ, शैतान जिहा, चर्च भी नहीं जाता, शक्ल देखी अपनी जिवें शैतान हुंदा। ये पाकरू के बगैर मनादी है, ये सर फड़वाने वाली मनादी है। इसके अंदर रूहें बदलती नहीं, नफरत पैदा होती है यीशु के लिए। हमने बहुत से लोगों को देखा, इरादा उनका नेक है, इरादा अच्छा है, रूहों को बचाना चाहते हैं, लोगों को खुदा की तरफ लाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि पाकरू उनके अंदर नहीं है इसलिए उनका मेथड भी गलत है। लोगों को इंसल्ट करके आप चर्च नहीं ला सकते, लोगों को बेइज्जत करके आप चर्च नहीं ला सकते, लोगों को फोर्स करके आप चर्च नहीं ला सकते, क्योंकि वो आपके गुलाम नहीं है। लेकिन जब पाकरू आपके अंदर आ जाएगा, आप कहेंगे बाजी खुदावंद ने तो 12 लाती हैं मेरी जिंदगी से। आपके पास तजर्बा तो होंगे ना। जिसके पास खुदा का रूह है उसके पास गवाही है, जिसके पास खुदा का रूह है उसके पास आजादी है, जिसके पास खुदा का रूह है उसके पास बरकत है, जिसके पास खुदा का रूह है उसको कलाम की समझ आ जाती है। तो वो फिर बड़ी तसल्ली से बात करता। लोग कहते नहीं यार ऐसा ही कह रहे, कहता चलो पाए किन्ने बजे लगता चर्च, मैनू भी लै जाना, बल्कि मैं तो लै जाना। ऐसा भी हुआ। हम शुरू में बड़े लोगों के घरों में जाते थे, मैं और भाई शायद, हम बड़े एक्साइटेड, हम साइकिलों में पहुंच जाते लोगों के घरों। जी कौन? ए बाजी मैं भाई नूं लैण आया, भाई उठ गए ने, कहंदा कह दे ड्यूटी ते नाइट ड्यूटी लगी 6 तक आए नहीं। अपने तरीके से गए, नाकाम हो गए, बाहर आ गए, पसीनो पसीन हो गए, पहुंच गए, खुद भी लेट हो गए चर्च से। वो बंदा भी ना आया। फिर उसको फोन किया, भाईजान तुसीं मैनूं वादा करके, उन्होंने कहा यार मैं अगले संडे चलाऊंगा। अगले संडे फिर पहुंच गए। फोर्स कर रहे हैं उससे, हमारे पास उसको बताने के लिए तो कुछ था नहीं। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद हमें ये बात समझ आ गई कि ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें दुआ करनी पड़ेगी, इन लोगों के लिए बोझ रख के दुआ करनी। फिर हम एक शख्स को पकड़ते थे, उसके लिए दुआ करते थे कि खुदावंद हम इस भाई के पास जाएं, इससे बात करें, तू से कॉल करना। और बेशुमार लोगों को हम लेकर गए, उन्होंने बपतिस्मे भी लिए, उनकी जिंदगियां भी तब्दील हुई, उन्होंने खुदा के साथ चलना भी शुरू कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो पाकरू जब आपकी लाइफ में आएगा तो वो सबसे पहला काम ये करेगा, वो बाइबल मुकद्दस को आपके लिए इतना रियल बना देगा कि आप जब भी इसे पढ़ेंगे आपको लगेगा कि यार ये तो कमाल की बातें हैं। जो चीजें पहले आपको कभी क्लिक नहीं की थी, हर बात क्लिक करेगी, क्योंकि अंदर समझाने वाला बैठा हुआ है। वो नए तरीके से बाइबल बताएगा, कहता बेटा देख इसका ये मतलब है। आप कहेंगे जी हैं जी, कहेगा यस ऐसे ही है, और फिर आपको समझ आ जाएगी, आप खुशी महसूस करेंगे। पहले आपको बोरियत होती, कहता कित्थों पढ़िया सी आखिरी बार, पढ़ते हैं लड़ते हैं साथ। कई लोगों को मैंने बाइबल पढ़ते देखा, लड़ाई भी करते हैं साथ। अंधा हांडी साड़ देती है, साहब बाइबल पढ़ रहे, क्योंकि ध्यान कोई नहीं है, ना समझ आ रही है, ना उसको पढ़ने को दिल कर रहा है। लेकिन जब पाकरू आपकी जिंदगी में आ जाएगा, बाइबल मुकद्दस आपकी बेहतरीन बुक बन जाएगी। आप इसको दुनिया की बेहतरीन किताब समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि इस किताब का राइटर आपके अंदर आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। और ये आपको सिखाना शुरू कर देगा कि बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या सच्चाइयां हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर क्या क्या खजाने छुपे हुए हैं मेरे लिए और आपके लिए। प्रेज द लॉर्ड। पहली बात, जब रूह कुदुस आप में आएगा तो वो मसीह यीशु की सूरत पे आपको ढालना शुरू करेगा। खुदा का कलाम आपको समझ आना शुरू हो जाएगा, आप खुदा की जात को समझना शुरू कर देंगे, आप दुआ में झुकना शुरू कर देंगे, आप खुदावंद के वादों पर यकीन करना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी में इत्मीनान आ जाएगा, सुकून आ जाएगा। हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, आप इसलिए डिस्टर्ब नहीं होंगे क्योंकि खुदा का पाकरू आपको हिम्मत देगा कि बेटा कोई बात नहीं, ये तारीख रात है लेकिन एक बड़ा खूबसूरत दिन भी चढ़ने वाला है जिसमें खुदा तुझे बरकत देगा। हालेलुया। अय्यूब ने कहा, उसकी बीवी कहने लगी तकफीर कर खुदा की और मर जा, इतनी बीमारी तुझे लाहक हो गई, तेरे सारी बॉडी के अंदर कीड़े पड़ गए हैं और ठीकरे से खुजाता रहता है, इससे बेहतर है खुदा के खिलाफ 2-4 बातें कर, खुदा का कहर तेरे पे भड़केगा, आप ही मर जाएगा और तेरी जान छूट जाएगी। उसके अंदर खुदा का रूह था। देखा, खुदा ने खुद कहा है कि वो कामिल आदमी था। शैतान से उसने कहा, तूने मेरे बंदे यूब को देखा, खुदा के साथ चलता था, खुदा के खौफ में चलता था, खुदा का रूह में काम करता था। उसने कहा कैसी नादानों की सी बातें करती, क्या हम उसके हाथ से सुख पाए और दुख ना पाए। जब पाक रूह आपके अंदर आ जाएगा तो आप कहेंगे यार मुसीबत तो आई है लेकिन खुदा का शुक्र है मैं मरा नहीं, मुसीबत तो आई है लेकिन खुदा का शुक्र है मैं जीता जागता हूं, खुदा का शुक्र है रोटी खाने को नहीं है लेकिन फिर भी मेरे पेट में इस तरह से दर्द नहीं हो रहा है। हालेलुया, जय यीशु की। आप मुश्किल लिखा मुसीबतों में फख्र,
जैसे रोमियो के खत में हमने पढ़ा, मुसीबतों में भी फख्र करेंगे तब जब खुदा का रूह आपके अंदर होगा। तो कितनी जरूरत है खुदा के पाक रूह। एक मसीही ईमानदार के लिए पाक रूह के बगैर जिंदा रहना नामुमकिन है। आमीन। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा ज्यादा, सिंपल गुफ्तगू है, सिंपल बातें हैं जिसके जरिए हम आपको सिखाना चाहते हैं कि खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगी में आने दें। ये आपको यकसर तब्दील कर देगा, ट्रांसफॉर्म कर देगा, जीरो से हीरो बना देगा। लोग आपके पीछे लग गए, जो लोग आपको देखते हैं ना, कंधोए दूसरी गली में से निकल जाते हैं, कंधा खलोता है, टाइम जाया करे। जान छुड़ाते हैं जो लोग आपसे, वो आपके पीछे पीछे आएंगे, कहेंगे भाई हम कहीं सानू भी टाइम दिया करो, क्योंकि उन्हें पता है कि अब इसके पास फजूल बातें नहीं हैं, अब इसके पास जिंदगी की बातें हैं। मैंने देखा है कि इन बातों की वजह से हमारी बड़ी कदर है। कल हम एक घर में विजिट करने के लिए गए, जिसका भाई बता रहे थे कि वो बहन कह रही थी कि खुदा मेरी नहीं सुनता। तो वो बहन कहने लगी, उसका बेटा कहने लगा है 1.25 घंटा हो गया पता भी नहीं चला। तो कहने लगी कि भाइयों की बातें इतनी अच्छी हैं, इतनी जबरदस्त गवाहियां सुना रहे हैं, वक्त का पता ही नहीं चला। तो बात इतनी सी है, हमारे अंदर तो कोई खासियत नहीं, लेकिन जो हमारे अंदर है वो बड़ा खास है, और वो लोगों को कायल करता है, वो लोगों को ब्लेस करता है, वो लोगों को बरकत देता है, और फिर लोग एक्साइटेड हो जाते हैं हमें मिलने के लिए। कुछ लोग कहते हैं सर, एक भाई ने मुझे उस दिन फोन किया, कहना सर जी फोन पे ताड़ी आवाज सुन के मैं खुश हो गया। मैं यार मेरी आवाज तो अच्छी, मेरा फटया है मेरा साउंड। कई लोग मुझे कहते हैं आपका गला खराब है, ये फोन पे मेरी आवाज सुनते हैं। मैंने कहा नहीं जी, ये पैदाइशी है, ये ऐसे ही खराश लगा के खुदा ने भेजा। आवाज की बात नहीं है, इसके पीछे जो तासीर है वो खुदा की। आमीन। तो खुदा ब्लेस करता है अपने लोगों को। मैं आपसे इस चीज की अपील करना चाहता हूं, आप अपनी जिंदगी में खुदा के पाक रूह को आने दें, मुतलाशी हैं। खुदा ने वादा किया है, लिखा है जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो क्या तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हें रूह कुदस ना देगा? वो देना चाहता है, लेकिन किन को? जो दुआ करते हैं, उसके हुजूर बैठ जाते हैं, जैसे रसूलों ने दुआ की। हो सकता है आप 2 दिन में खुदा के पाक रूह से भर जाएं, और ये तजर्बात फर्क हो सकते हैं। हर शख्स की जिंदगी में फर्क तजर्बात है। एक दफा मेरे साथ ऐसे हुआ था, हम मरीदके में गए थे, उस वक्त मुझे रूह कुदस का बपतिस्मा नहीं मिला था, लेकिन जब हम मरीदके में गए कुछ दोस्तों के साथ, बड़ी तेज आंधी आ गई। इतनी तेज आंधी थी कि आपको पता लाहौर में कितने शॉपर उड़ते हैं, शॉपिंग बैगों का मेला लगा हुआ था। इधर से शॉपिंग बैग उड़ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, आंधी मिट्टी से बाल मारे, और ईद का दिन था, छोटी ईद। तो एक साथ मेरे भाई था, वो कहने लगा यार वापस ना चले, कहता मौसम भी ठीक नहीं यार, मुझे लगता है कि आज हम पहुंच नहीं सकेंगे, सवारी भी कोई नहीं मिल रही। मेरे साथ एक और भाई था, वो बड़ा जियाला था, उसने कहा नहीं जी अज जाना ही जाना, शैतान जिन्ने मर्जी छापर डाले, कहता अज असी जाके छड़ांगे। और मैं अपनी जिंदगी में कभी बस की छत पे नहीं सवार हुआ था। तो उसने कहा कि जी थले तो जगह फुल हो गई है सर जी, लटकन लगी नहीं हम जगह है जी, मरीद के तक किमें लटक के जाओगे, छत पे रह जाओ। वहां पे कुछ गुज्जर बरादरान बैठे थे बल्टोए लेके, हम उनके साथ बैठ गए, और बाल आप यकीन माने जेल से क्या खड़े होते, जैसे मिट्टी से खड़े हो गए थे, यहां तक पहुंच गए थे। मेरे बाल भी बड़े होते थे, और सबके बाल खड़े हो गए, मिट्टी से आंखें भर गई, सारे कपड़े, ब्लैक पैंट पहनता था मैं, मेरी सारी ऐसे वाइट सी हो गई, बुरे हाल हो गए हमारे। लेकिन हम वहां पर पहुंच गए, इबादत शुरू होने से 15 मिनट पहले उन्होंने हमें कहा कि जी आप मुंह हाथ धो लें। हमने अच्छी तरह अपने आप को फ्रेश किया और हम बैठ गए, और जैसे ही हम बैठे दुआ शुरू हुई, तो बुजुर्ग खादिम ने कहा कि आज मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि कल रात जब मैं दुआ कर रहा था, खुदा ने मुझसे कहा था कि आज बहुत से लोगों को पाक रूह का बपतिस्मा मिलेगा, और आप सब ईमान से आए हैं, और मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि आप ईमान रखें कि खुदावंद आज आपको पाक रूह देगा। सो दुआ में झुक जाएं। हम सब दुआ करने लग गए, और बारी बारी से हम खुदावंद के खादिम के पास जाते थे। तो जो शख्स कहता था कि जी आज नहीं जाना चाहिए, वो उसको पहले पाक रूह का बपतिस्मा मिल चुका था, लेकिन जो हम 2 थे हमें नहीं मिला। तो वो मेरे आगे था दूसरा दोस्त, जैसे उसने उस पर हाथ रखे और वो गैर जुबानें बोलने लगा ऊंची ऊंची आवाज में, वो इतनी गैर जुबानें उसने बोली कि उसने अपना गला ही बंद कर ली, बोल बोल के इतना एक्साइटेड हो गए। मैं बता रहा हूँ मुख्तलिफ तजर्बात होते हैं, लेकिन जब मुझ पे हाथ रखा गया मुझे भी गैर जुबानें मिल गई, लेकिन मैं इस तरह एक्साइटेड नहीं हुआ। मैं आके नाम से बैठ गया और मैं दुआ करने लगा, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब खुशी और शादमानी भर गई। ऐसी खुशी मेरे अंदर थी नहीं, लेकिन खुशी से मैं भर गया। कई लोगों को ऐसे हीट सी फील होती है जब पाक रूह उनकी जिंदगी में आ रहा होता है, उन्हें ऐसे लगता है जैसे यार ये अजीब सा एहसास है, जैसे गरम गरम ऑयल आ रहा है, ऐसे लगता है जैसे कोई मसाज कर रहा है और वो आपके मसामों के अंदर घुस रहा है। कई दफा ठंडक फील होती है, कई दफा आप जोरदार तरीके से प्रशिश करना शुरू कर देते हैं, जोरदार तरीके से बोलना शुरू कर देते हैं, खुदा की तारीफ और हम्द करते हैं। और जो लोग, अभी भाई ने कहा था कि कितने लोगों को बपतिस्मा मिल चुका है, तो 2-3 लोगों के हाथ खड़े थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन लोगों को रूह कुदस का बपतिस्मा मिल जाता है उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहती। क्योंकि जब पाक रूह आता है तो वो इसलिए आता है कि वो आपकी जिंदगी को बदले, वो ऐसा
किराएदार नहीं है जो बस कहना जी मेरा लैदा बुआ होवे, किराए पे मकान लेते हैं ना, कहना जी साडा बुआ लैदा होएगा, मालिक मकान से लैदा बुआ मांगते हैं, कहना जी ताकि आन जान प्रॉब्लम ना आए। वो ऐसा किराएदार नहीं है जो लैदा बुआ मांगता है क्योंकि उधरों ही निकल जाए तो उधरों ही आ जाए। वो एक ही बुए के अंदर रहता है जिसमें आप रहते हैं। वो कंप्लीटली तौर पर आपकी लाइफ को होल्ड करना चाहता है, और जिस जिंदगी के अंदर पाकू आ जाता है वो जिंदगी बदल जाती है। हालेलुया। आपके फाइनेंस के ऊपर बरकत आना शुरू हो जाती है, आपके हालात खुदा तब्दील करने शुरू कर देता है, आपकी सोचों को तब्दील कर देता है, आपके उठने बैठने को तब्दील कर देता है, आपकी जो तरजीहात हैं, जो आपकी आदतें हैं वो बदलना शुरू हो जाती हैं। आप जिन चीजों को अच्छा समझते हैं, आप कहते हैं नहीं यार ये चीजें इतनी खास नहीं है मेरे लिए, मैं इन चीजों को अपनाऊंगा, मैं प्रशिश करूंगा, मैं गीत गाऊंगा, मैं खुदा की तारीफ करूंगा, मैं कलाम पढ़ूंगा, मैं खुदा की मदद सराई करूंगा, और आप हम और सताइश के नगमों से भर जाते हैं जब खुदा का रूह आप में आता है। तो कितने लोग, हम बहुत दफा सवाल करते हैं, लेकिन हमारी ख्वाहिश रही है कि लोग पाक रूह से भरें। इससे बड़ी और कोई ख्वाहिश आपके लिए होनी नहीं चाहिए। एक मसीही जो बपतिस्मा ले चुका है, यहाँ पर ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने बपतिस्मा पानी का ले लिया, असी अपना काम कर देता है। मैंने शुरू में बात बताई थी, हम सिर्फ पानी तक ले जा सकते हैं और आपकी मदद कर सकते हैं कि खुदा के वादे आपके सामने खोल दें कि खुदा ने ये वादा आपके लिए किया है। नेक्स्ट प्रोसीजर आपका है। यीशु ने हाथ बढ़ाया हुआ है दरिया के आग में, आपने सिर्फ अपना हाथ यीशु को देना है, इस आग के दरिया में आपने उतर जाना है। और फिर क्या होगा? क्या होगा कोई बता सकता है? आप पाक रूह की आग से भर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या इस दरिया में आप यीशु का हाथ पकड़ के अंदर उतरना चाहते हैं? उतरना चाहते हैं? सब एक भाई पीछे से हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी हाँ जी कर रहे हैं। वेरी गुड। हाँ जी का मतलब यही है कि जी यस। सो आज मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा पादी साहब से, चाहे हम 5-10 मिनट ऊपर चले जाएं, लेकिन मेरी दुआ होगी और मेरी कोशिश भी होगी, हम सब इसके लिए झुकेंगे, हम कुछ देर प्रस्तिश करेंगे और आपको इस चीज़ के लिए तैयार करेंगे कि आप अपने आप को खुदा के ज़रूर खोल दें। हालेलुया। आप आधा काम कर चुके हैं, आपने खुदा की रास्तबाजी के इस काम को पूरा किया है, आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया है। अब आज आप यीशु मसीह से कहें कि मुझे आग में से बपतिस्मा दे। हालेलुया। मुझे अपनी आग से भर दे। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आप मसीही जिंदगी में तब तक पुरजोर तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक खुदा का पाक रूह आपके अंदर ना हो। और जब आप पाक रूह के आग से भर जाएंगे, वो आपको रोज बरोज नई बातें मसीह के ताल्लुक से सिखाएगा और आपको अपनी नेमतें भी अता फरमाएगा ताकि आप मसीह में और मजबूत हो जाएं और इस जमीन पर उसकी बेहतरीन तरीके से दुआई दे सकें। खुदा आपको बरकत दे जी भाई।